Dear students, wish you a very good morning and warm welcome to my YouTube channel English Arena. We are discussing or we are learning how to speak English fluently and accurately. We are learning phonetics. We are learning basics of English speaking course, and in today's video we are going to discuss structure of syllable. पिछले वीडियो में हमने सिलेबल के बारे में कुछ बेसिक्स, कुछ फीचर्स जाने थे. आइए आज हम जानते हैं व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ सिलेबल. एक सिलेबल का क्या स्ट्रक्चर होता है, किस प्रकार से हम उस स्ट्रक्चर को फॉर्म कर सकते हैं और उस स्ट्रक्चर में कॉन्सोनेंट्स और वॉवल्स का क्या रोल होता है. आपने पिछले वीडियो में ये फॉर्मूला देखा था, C0 to 3 V C0 to 4. ये एक जो मैथमेटिकल फार्मूला आप देख रहे हैं, इस फार्मूला से हम सिलेबल का स्ट्रक्चर बना सकते हैं. स्ट्रक्चर ऑफ सिलेबल. यहां पर कॉन्सोनेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर C while vowels are represented by capital letter V. Here this is a syllable, this is the structure of a syllable, and in this structure this vowel V is known as the nucleus of the syllable. इसे हम किसी भी सिलेबल का न्यूक्लियस कहते हैं. कोई भी वर्ड, कोई भी सिलेबल केवल वोवल से बन सकता है और इससे पहले कुछ कॉन्सोनेंट्स हो सकते हैं और इसके बाद भी कुछ कॉन्सोनेंट्स हो सकते हैं किसी भी सिलेबल में. आइए हम जानते हैं कि इससे पहले जो कॉन्सोनेंट होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, बाद वाले कॉन्सोनेंट्स को क्या कहते हैं और वो कॉन्सोनेंट्स कितने हो सकते हैं. जैसा कि इस फॉर्मूला से स्पष्ट है, इट इज क्लियर दैट the number of consonants before a vowel in a syllable may vary from 0 to 3. हो सकता है कोई भी कॉन्सोनेंट ना भी हो, एक कॉन्सोनेंट हो सकता है, दो हो सकते हैं या फिर 3 हो सकते हैं, मैक्सिमम 3 हो सकते हैं before a vowel in a syllable, and there may be 0 to 4 consonants after this nucleus of a syllable. इस वॉवल से पहले 0 से 3 कॉन्सोनेंट हो सकते हैं और इसके बाद 0 to 4 कॉन्सोनेंट्स हो सकते हैं. कॉन्सोनेंट्स बिफोर दिस न्यूक्लियस इन ए सिलेबल आर नोन एज रिलीजिंग कॉन्सोनेंट्स. इन्हें हम रिलीजिंग कॉन्सोनेंट्स कहते हैं और कुछ फोनेटिक्स के कुछ बुक्स में इन्हें ऑनसेट भी कहा गया है. ऑनसेट. Consonants before a vowel or nucleus in a syllable are known as onset or releasing consonants, and the consonants after the vowel or nucleus in a syllable are known as arresting consonants or coda. इन्हें हम arresting consonants कहते हैं या फिर कोडा के नाम से हम इन्हें जानते हैं. जब भी हम syllable की बात करेंगे तो मैं यहां अपने वीडियो में इसे इस न्यूक्लियस से पहले वाले कॉन्सोनेंट्स को ऑनसेट और इसके बाद वाले कॉन्सोनेंट्स को कोडा कहकर पुकारूंगा ताकि आप समझ जाएं. ऑनसेट मींस रिलीजिंग कॉन्सोनेंट्स एंड कोडा मींस अरेस्टिंग कॉन्सोनेंट्स, क्योंकि ये इसको अरेस्ट कर रहे हैं वोवल को, ये रिलीज कर रहे हैं. रिलीजिंग एंड अरेस्टिंग कॉन्सोनेंट्स आर नोन एज ऑनसेट and coda respectively. A syllable may be without releasing consonants or without onsets. They may be without coda, or there may be 0 to 3 consonants before a vowel or nucleus of a syllable, and there may be 0 to 4 consonants or coda after the vowel in the syllable. This is the basic structure of a syllable. यही एक syllable का basic structure है. The consonants, these consonants, either releasing or arresting consonants in a syllable,
are marginal or optional. They are not mandatory to be a syllable. They are marginal or optional in the structure of a syllable. Now, let us take a few examples in which the number of consonants vary from 0 to 3, either onset or either in case of coda. Here, I am taking a few examples. First example is structure of a syllable having nucleus only, means without releasing or arresting consonants, without onset or coda. It's represented by V, this vowel, and this is a word or a syllable, a single syllabic word. For example, I or I. They have same pronunciation. This is the orthographic representation of English words. Orthography. Orthography means science of spellings or words spelt. Spelt words are known as orthographical representation of words in English. I. Phonetically, or their phonemic transcription is I, which is represented by a diphthong, a glides. I. Next is A-R-E. Here, last sound R is silent and it is pronounced as R. R. And O-H, O. 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 These are only vowels, means these are syllables. ये भी syllable है having no consonants before them or after them. Means these syllables have neither releasing consonants nor arresting consonants. They have neither onset nor coda. I, R, O. Means there is no onset, no releasing consonant, no coda, means no arresting consonant, only nucleus is there. So it is mandatory to have a vowel by a nucleus. And structure of a syllable may have only a single vowel. Next is vowel and consonant. Next structure of a syllable is vowel and consonant. Let's take a few examples. For example, M, eat, of, egg. अगर इन वर्ड्स की ये जो ऑर्थोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है, अगर हम इनको फोनेमिक रिप्रेजेंटेशन में लिखें, दे विल बी रिटन एज एम, ईट, ऑफ, एग. दे हैव vowel at the beginning of them and they have one consonant after them, means their structure is VC, vowel consonant. And now what does it mean? It means these words have no onset, no releasing consonant. They have a nucleus and a coda or an arresting consonant. So their structure is VC. Let us discuss a few more structures of syllables. Dear students, हमने सीखा structure of syllable. Structure of syllable में हमने देखा कि एक vowel से पहले maximum 3 consonants हो सकते हैं और vowel के बाद maximum 4. आइए अब हम different structures और different syllables के कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं कि सिलेबल कितना छोटा हो सकता है, सिलेबल कितना बड़ा हो सकता है. आइए अब हम कुछ एग्जाम्पल और ले रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम फर्स्ट सिलेबल की बात करें तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो थर्ड स्ट्रक्चर है दैट इज वॉवल कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट, मीन्स C0 V C2. अगर हम उस फॉर्मूला की बात करें तो यहां ये एक प्रकार का सिलेबल है VCC. एग्जाम्पल्स देखिए, आस्क, एंट, आंट, ऑप्ट. ये ऑर्थोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है, वर्ड्स हैं इंग्लिश के जिनमें हम इस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हैं या इस वर्ड को देखकर
हम ये स्ट्रक्चर बता सकते हैं। ये स्ट्रक्चर इसकी साउंड पे डिपेंड करता है, इसकी फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन पे डिपेंड करता है। ये इसका फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन जो रेस्पेक्टिवली इस टेबल में, इस कॉलम में लिखे हुए हैं, आस्क, एंट, आंट, ऑप्ट। नेक्स्ट देखिए, वॉवल followed by 3 arresting consonants means no releasing consonant, no onset, and 3 consonant or 3 coda. Vowel, consonant, consonant, consonant. Asked, ants, aunts. हमने केवल ऊपर वाले वर्ड्स में कुछ ऐड कर दिया है, कुछ सफिक्स लगा दिए हैं, कुछ को प्लूरल बना दिया है, और एक की हमने पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ली है। आस्क को हमने यहां कहा आस्क्ड, यहां पर हम इसको ड साउंड प्रोड्यूस नहीं करेंगे, इट विल बी प्रोनाउंस्ड एज आस्क्ड, ट, आस्क्ड, ट साउंड यहां प्रोड्यूस होगी। यहां आपको ध्यान देना है, क्योंकि जब भी वॉइस्ड साउंड के बाद ये सफिक्स लगता है तो ड को ट प्रोनाउंस करते हैं। आस्क्ड, एंट्स, आंट्स, ये इनकी फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शंस हैं। नेक्स्ट इज सी वी, मीन्स ओनली अ रिलीजिंग कॉन्सोनेंट एंड न्यूक्लियस और ए वोवल। ऑनसेट एंड ए वोवल मीन्स C1 V C0। फॉर एग्जाम्पल कुछ इंग्लिश वर्ड्स लेते हैं, बी, फ्यू, ब्लू, फ्राई। यहां पर देखिए, बी, फ्यू, ब्लू एंड फ्राई, सी एंड वी, सी एंड वी। यहां पर हमने इस प्रकार से इसको देखा, ये सी वी का एग्जाम्पल है, इसको हम यहां से रिमूव कर देते हैं। नाउ वी कम टू सी वी, और लाइक दिस, ये सी वी, कॉन्सोनेंट वॉवल, कॉन्सोनेंट वॉवल, बी, फ्यू। अगर हम यहां बात कर रहे हैं सी वी की, सी वी के केस में हम यहां पर लिख सकते हैं ब्लू, ब्लू, और इसको हम फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन इस प्रकार से लिखेंगे, ब्लू, सी वी। CV means C1 V C0 or C2 V C0 with a syllable with 2 releasing consonants and a nucleus without arresting consonants. Blue, blue. Next is C3C means 3 consonants preceded with a vowel. एक वॉवल से पहले 3 कॉन्सोनेंट्स, और यू कैन से 3 रिलीजिंग कॉन्सोनेंट्स बिफोर द न्यूक्लियस ऑफ ए सिलेबल। फॉर एग्जाम्पल स्क्रू, स्ट्रॉ, स्प्रे। आप जब ध्यान से देखेंगे तो आप इस स्ट्रक्चर और इस वर्ड में एक रिलेशन पाएंगे, और इसके फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन से वो रिलेशन एस्टैब्लिश होगा, साफ साफ दिखाई देगा। स्क्रू, हम इसको इस प्रकार से प्रोनाउंस करेंगे, इट्स स्क्रू, नॉट स्क्रू। इसको स्क्रू नहीं कहेंगे, इट्स स्क्रू। जैसे देखिए, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट एंड वॉवल। सो दिस इज C3 V C0। स्ट्रॉ और स्प्रे, स्प्रे, इट विल बी प्रोनाउंस्ड एज स्प्रे, नॉट स्प्रे, स्प्रे। Next is CVC, means a structure, a syllable with a single releasing consonant and a single arresting consonant. CVC, for example, single syllable words, God, man, boys, girl. God, God, man, boys, girl। यहां पर ये जो फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन है, इससे स्पष्ट है कि ये CVC सिंगल सिलेबिक वर्ड्स हैं।
यहां पर इसे हम बॉयज कहेंगे। इस वॉवल साउंड के बाद एस को हमेशा ज प्रोनाउंस करते हैं, बॉयज। इसे हम बॉयज नहीं कह सकते, बॉयज। गर्ल, लाइक दिस। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखिए, एट स्ट्रक्चर इज सी सी वी सी, मीन्स सी टू वी सी वन। किसी भी सिलेबिक स्ट्रक्चर में हमने सीखा था कि इस वॉवल से पहले जो रिलीजिंग कॉन्सोनेंट्स हैं वो मैक्सिमम 3 हो सकते हैं और जो अरेस्टिंग कॉन्सोनेंट्स हैं वो मैक्सिमम 4 हो सकते हैं। यहां पर 2 रिलीजिंग कॉन्सोनेंट्स हैं, 1 अरेस्टिंग कॉन्सोनेंट, 2 ऑनसेट, 1 कोडा, और बीच में है न्यूक्लियस, मीन्स वॉवल। जैसे देखिए प्लीज, हालांकि यहां 6 लेटर्ड वर्ड है, ये इसमें 6 लेटर्स हैं, लेकिन इसके अंदर साउंड्स केवल 4 हैं। जैसे हम इस प्रकार से लिखेंगे, ट्रांसक्राइब करेंगे, प्लीज, प्लीज, ग्लैड, ग्लैड। इसका जो एग्जाम्पल है वो यहां से पता चलेगा, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट, वॉवल, कॉन्सोनेंट, मीन्स C2 V C1। 2 releasing consonant, a syllable with 2 releasing consonant and 1 arresting consonant. Next is C, 3 releasing consonants, nucleus and 1 arresting consonant. For example, stream, scream, stream, C V C, C V C, C3 V C1. This is the next type of a syllable, next structure of a syllable. इस प्रकार से हमने देखा कि जो फॉर्मूला हम शुरू में लेकर चले थे, उस फॉर्मूला के अनुसार डिफरेंट ऑनसेट और डिफरेंट रिलीजिंग और अरेस्टिंग कॉन्सोनेंट्स वाले डिफरेंट वर्ड्स हैं, जिनको हम डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में दिखा सकते हैं। Next is CVCC, means 1 releasing consonant, then nucleus and with 2 arresting consonants. C1 V C2. For example, land, land, jump, 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 voiced sound, jump. Next is 11th type of syllable structure is CVCCC, means C1 V C3। यहां पर देखिए, जैसे नेक्स्ट, हालांकि आपको यहां लगेगा कि इसके अंदर तो 4 ही लेटर हैं, जबकि इसके स्ट्रक्चर में 5 हैं। यस, यहां पर इसके ऑर्थोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन में, इसके स्पेलिंग में हमें 4 ही लेटर दिखाई देते हैं, परंतु जब हम इसकी फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन लिखेंगे तो यहां पर ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। नेक्स्ट, क श, क और श साउंड, नेक्स्ट, सी वे से। मिक्स्ड, यहां फिर से हम इस डा को टा प्रोनाउंस करेंगे, मिक्स्ड। when two particles are mixed, not mixed, mixed. CVCCC means C1 V C3. नेक्स्ट इज CVC4। हमने देखा था कि मैक्सिमम 4 C हो सकते हैं किसी भी वॉवल साउंड के बाद, किसी न्यूक्लियस के बाद। तो यहां पर देखिए, ये 4 C वाला एक एग्जांपल है, टेक्स्ट। हालांकि देयर आर ओनली 5 लेटर्स इन दिस वर्ड, दिस इज ए 5 लेटर्ड वर्ड, but there is a syllable, this is a single syllabic word, all of these are single syllabic words। ये वो वर्ड्स हैं जिनमें केवल एक सिलेबल है। कोई वर्ड इतना लंबा है फिर भी एक सिलेबल है। सिलेबल मीन्स 1 वॉवल साउंड। इन सभी वर्ड्स में केवल एक वॉवल साउंड है, इसीलिए इनको हम सिंगल सिलेबिक वर्ड कह सकते हैं। वो वर्ड छोटा भी हो सकता है, जैसे गॉड, मैन, और वो वर्ड बहुत लंबे भी हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्क्रीम, अ सिंगल सिलेबिक वर्ड।
CVCCC text. CVCCC means for arresting consonants in the word texts. Next is CCVCC. C2VC2. एक वॉवल से पहले मीन्स जो न्यूक्लियस है उससे पहले भी दो कॉन्सोनेंट्स और बाद में भी दो कॉन्सोनेंट्स, दो रिलीजिंग कॉन्सोनेंट्स, दो अरेस्टिंग कॉन्सोनेंट्स, एंड द वर्ड इज ट्रेन्स. इसे हम ट्रेन्स नहीं कहेंगे, इट इज ट्रेन्स. इट इज स्कूल्स, नॉट स्कूल्स. स्कूल्स, क्योंकि ये वॉइस साउंड के बाद ऐसा है, इट विल ऑलवेज बी प्रोनाउंस्ड एज नॉट ट्रेंज. ट्रेंज. CC V, ये डिप्थोंग है V एंड CC. CCVCC schools. Next is CCVCCC. C2VC3 spends. इसे हम बोलेंगे spends क्योंकि ये ड यहां पर वॉइस साउंड है, इसके बाद यदि ऐसा आता है तो वो ज प्रोनाउंस होगा and it will be pronounced as spends. CCVCCC. C2VC3. And at last, the last example is C3VC3. दोनों तरफ 3 releasing and 3 arresting consonants. न्यूक्लियस के इधर भी 3 releasing consonants, इधर भी 3 arresting consonants. An example is scripts. Scripts. For example, say, V, C. C3, V, C3. In this way, you can witness as many syllabic structures or words with single syllables. Single syllable वाले बहुत सारे words आप लिख सकते हैं. या आप इस वीडियो को देखते हुए write down a few more examples of each type. फॉर एग्जाम्पल आप इस टाइप के भी कुछ 2, 4, 5 वर्ड्स जितने भी लिख सकते हैं लिखिए. यू विल बी एबल टू ट्रांसक्राइब ऑल द वर्ड्स, यू विल बी एबल टू मेमोराइज देयर स्पेलिंग्स एंड यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ syllables in the given words. In this way, we can write as many words as we want to. हम बहुत सारे वर्ड्स लिख सकते हैं, उनके सिलेबल स्ट्रक्चर को पहचान सकते हैं, नंबर ऑफ सिलेबल्स को काउंट कर सकते हैं, उनको फोनेमिकली ट्रांसक्राइब भी कर सकते हैं. इन दिस वे वी कैन लर्न स्ट्रक्चर्स ऑफ सिलेबल्स. नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू काउंट सिलेबल्स. व्हाट आर ओपन सिलेबल्स, व्हाट आर क्लोज्ड वॉवल्स एंड ओपन वॉवल्स. ये चीजें हम सीखेंगे और किसी भी दिए गए वर्ड में हाउ टू काउंट सिलेबल्स, सिलेबल्स को कैसे काउंट करते हैं उनके काउंटिंग करना भी सीखेंगे. सिलेबल्स वह मूलभूत इकाई है जिससे हम वर्ड की स्पेलिंग सीख सकते हैं, उसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सीख सकते हैं, उसकी स्पेलिंग्स को मेमोराइज कर सकते हैं, उसको नंबर ऑफ सिलेबल्स में डिवाइड करके उसे ट्रांसक्राइब भी कर सकते हैं. Thank you very much. All the best.